کیا یہ حکومتی حکمت عملی پاکستان سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرے گی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. پینل کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمیں حسن نثار صاحب جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے، مظہر عباس صاحب کراچی اسٹوڈیو سے، اور ریما عمر صاحبہ وایا اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہے. بھٹی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی. جو پارلیمانی کمیٹی تھی قومی سلامتی پر، ختم ہو گیا اس کا اجلاس. خبریں اندر سے کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو ساری مذاکرات چل رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں، اسی سلسلے میں ایم کیو ایم نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے حکومت سے. جی میڈم شیخ، میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن آپ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان جو پاکستان ہے، جو کالعدم ہے، وہ تو بڑا ایشو ہے میڈم شیخ. وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، کون مذاکرات کر رہا ہے، کس سے مذاکرات کر رہا ہے، کیا کون درمیان میں ہے. یعنی سنا جا رہا ہے حقانی گروپ درمیان میں ہے، کوئی طالبان لوگ درمیان میں ہیں. کتنے ان کے طریقے طالبان پاکستان کے کتنے گروپس ہیں، ان گروپس میں کس گروپ سے ہو رہے ہیں، اور ان کے مطالبات کیا ہیں. یعنی وہ قیدیوں کو رہائی چاہتے ہیں، باقی اور کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مطالبات کیا ہیں سرنڈر کرنے کے علاوہ اور پرامن ہونے کے علاوہ. یہ تو بڑا معاملہ ہے میڈم شیخ، یہ تو بڑا معاملہ ہے. مجھے تو یہ دکھ یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تحریک لبیک والا ہے، ابھی تک کیا آپ کو یا مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ان معاہدے کی شرائط کیا ہیں، وہ ان کے مطالبات کیا تھے اور ہمارے مطالبات کیا تھے. یعنی پہلے سنا جا رہا تھا، ہم نے سنا ساروں سے کہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کا تو مطالبہ ہے ہی نہیں، اور یہ مطالبہ صرف حکومتی وزراء حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اور پھر طریق لبیک والوں نے کہا کہ اس کا اتنا ہی مطالبہ تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، اور چونکہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے اس لیے یہ مطالبہ نہیں ہے. اچھا، مفتی منیب کے پہلے بیان بھی اس پر یہی آئے تھے کہ حکومتی وزراء جھوٹ بول رہے ہیں. اور صاحبزادہ احمد رضا نے بھی بتایا تھا کہ چھٹے معاہدے میں پہ عمل درآمد چونکہ نہیں ہوا، اس لیے یہ ساتویں ہم یہ لانگ مارچ اور کرنے لگے. چھٹا معاہدہ کیا تھا؟ 2 مہینے کے اندر سعد رضوی صاحب کو رہا کرنا، سارے قیدیوں کو، کالعدم ختم کرنا، 4 شیڈول ختم کرنا، مقدمات ختم کرنا. اچھا، پھر لیکن حکومت پوری کہہ رہی تھی کہ چونکہ ان کا ہمارا اٹکا وہی معاملہ اس پہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد طریق لبیک والوں کی طرف سے اچانک سننا شروع ہو گیا کہ نہیں ہمارا تو مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کا. مفتی منیب صاحب کا دیگر قلعدم جماعتیں ایک اور بیان آ گیا، مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر سے بھی پابندی ہٹائی جائے. صورتحال آپ کس طرح بنتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومتی جو حکمت عملی تھی یہ درست ہے؟ کیا اس سے دہشت گردی انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا؟ میڈم شیخ، پہلی بات وہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں مطالبہ معاہدہ کیا تھا، اس کے نکات کیا تھے دونوں طرف سے. یعنی اچھا، مفتی منیب بھی بدل گئے، باقی بدل گئے. دوسری بات یہ کہ اس کو آپ حکمت عملی کہتے ہیں، اس کو آپ حکمت عملی کہتے ہیں کہ اگر یہی مطالبات تھے جو چھٹے معاہدہ ہوا تھا تو اس میں 5 اہلکار مروانے اور باقی اتنا اربوں کا نقصان کروانے کے بعد 7واں معاہدہ کیا چھٹے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے. یہ حکمت عملی ہے؟ یہ حکمت عملی ہے ہی نہیں. یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے. خدا کے لیے یہ سیریس ہی نہیں ہوتے، اور پتہ ہی ہمارے سامنے اصل حقائق آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ریما عمر صاحبہ، کچھ اس پہ حکومت کہتی نا کچھ چیزیں ہیں مصلحتاً نہیں شیئر کی جاتی ہیں، مناسب وقت آنے پر کی جائے گی. کیا یہ بینیفٹ دینا چاہیے حکومت کو، ریاست کو، اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو پالیسی ہے کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ جی شکریہ لینا. نہیں، بالکل کوئی بینیفٹ اس میں نہیں دینا چاہیے حکومت کو، ریاست کو. یہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس کو خفیہ رکھا ہے، یہ ایک بیٹریل ہے، دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ، اور میرا اس کو جسٹیفیکیشن بنتی ہے. دیکھیے لینا، اپریل میں تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی جب لگائی گئی تھی، میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس سے اختلاف کرتی ہوں. میری نظر میں یہ صحیح قدم نہیں ہے اس وقت، اور اس کی وجوہات 2 تھیں. ایک قانونی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. آپ کو سپریم کورٹ میں ان کی ڈیسولوشن کی ریفرنس دینی ہوتی ہے. آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہیں بین کیا، اس میں یہ قانونی طور پہ ایک غلط فیصلہ تھا.
दूसरा ये लीना कि आपने अगर एक तंजीम को भी बैन करना है उससे पहले आपको बहुत से और स्टेप्स हैं जो लेने होते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि रियासत एक पेज पे है, आपके जो अहम वुज़रा हैं वो एक पेज पे हैं। आपने जो पहले होमवर्क करना है उनकी फाइनेंसिंग के हवाले से, उनकी आइडियोलॉजी के हवाले से, वो सब आपने कर लिया है और फिर आपने एक यूनानिमस फैसला किया है कि अब पाबंदी का टाइम आ गया है, क्योंकि बाकी सब जो स्टेप्स हैं वो फेल हो गए हैं और होमवर्क है वो पूरा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवंबर में मुआहिदा हुआ, फरवरी में मुआहिदा हुआ, अप्रैल में एकदम था उनको काला दम कर दिया, फिर से मुआहिदा हुआ, फिर उनकी बातों पे अमल भी हुआ, उन्होंने इलेक्शंस भी लड़े, अब आपने फिर से एक मुआहिदा किया, अनबैन कर दिया। ये हुकूमत की सिर्फ कंफ्यूजन, उनके दोहरे मयार दिखाती है और उनकी फ्रैंकली इनकॉम्पिटेंस भी दिखाती है कि कानूनी तौर पे उन्होंने सही अपना होमवर्क नहीं किया था और जल्दबाजी में उन्हें कालादम करने का स्टेप लिया गया। एक अलीना और चीज मैं पढ़ना चाहती हूँ, जब उन्हें बैन किया गया, कहा गया नोटिफिकेशन में कि ये जमात दहशतगर्दी में मुलविस है, इसने पुलिस वालों को, सिविलियंस को मारा है, उन पे तशद्दुद किया है, ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी के खिलाफ काम कर रही है। जो नोटिफिकेशन कल परसों आया, जब बैन हटाया गया, उसमें इन सबके जवाब तो मौजूद नहीं थे। अगर ये सब वजूहात थी बैन करने की, उससे बस ये कहा गया कि मुल्क डिस्कशन ही नहीं हुई, बिल्कुल वसीतर मफाद में, मुल्क की मफाद में हमने दुरुस्त फरमा रही है। कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं हसन निसार साहब से जानना चाहूंगी, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन हसन निसार साहब माजी में, ठीक है, हसन निसार साहब माजी में कह चुके हैं कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, मुज़ाकरात दुश्मनों से भी हो जाते हैं। तो हसन निसार साहब अब दीगर जो कलअदम जमातें हैं, जिनको दहशतगर्द भी कहा गया, कुछ ऐसी जमातें भी शामिल हैं, मुतालबा कर रही हैं कि जी सिलेक्टिव बैन क्यों हटा रहे हैं आप, हमारे ऊपर से भी फिर बैन हटाएं, हम भी वरना एहतजाज करेंगे। देखें अलीना, इंतहा पसंद, खूनी या दहशतगर्द, ये जो तहरीकें हैं इनकी तारीख बहुत तवील है, मैंने पढ़ी भी है और उस पर लिखा भी बहुत है। और उसके बाद मैं पर्सनली इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुकूमतें नहीं, ज़्यादातर हालात और वक्त इनका ख़ात्मा करते हैं। बाकी ये जो हाइड एंड सीक चल रहा है, ये सीसॉ चल रहा है, या आंख में चोली खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। तो और मेरा ख्याल है इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो यही जो एक ह्यूमन हिस्ट्री की जो तारीख है, उससे बड़ा फार्मूला क्या होना है। बाकी ये माइक्रो लेवल पे ये जो होते हैं, मैं तो हुकूमत के सच्ची बात ये है, किसी भी मामले को आपने गौर किया होगा, मैं करंट अफेयर्स में ना मुझे दिलचस्पी है ना मैं लिखता हूँ इन पे, इनसे कराहत आती है मुझे पता है इनके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ भी नहीं, एक ढोंग है, बुनियादी तरीन चीजें ये हमारे हुक्मरान मैनेज नहीं कर पाते। बुनियादी तरीन चीजों की इनका ना कोई फहम है, ना इनका कोई विजन है, ना कुछ। और इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये पीली टैक्सियां, ये पता नहीं क्या, वो मुल्क सवारो, कर्ज उतारो। जुमला कहा आपने, कहा हालात और वक्त जो है वो इनका खात्मा करते हैं सर, लेकिन कुछ इस तरह के इकदाम भी तो होते होंगे जो इनको जिला भी बख्शते हैं। क्या आपको लगता है जो मौजूदा सारा चल रहा है हुकूमत की तरफ से, जो मैंने पहली बात तो ये है अलीना, ये मैंने नहीं कहा, मैंने आपको ये अर्ज किया था कि मैंने दुनिया की जितनी इंतहा पसंद, खूनी और दहशतगर्द, ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मैंने इनकी बड़ी तफसील से इनकी तारीख पढ़ी है। वो तारीख ये बताती है, मैंने जो नतीजा अखज़ किया है वो तारीख पढ़ के किया है, तो मैं नहीं है, तारीख बता रही है आपको ये, ठीक है। और कुछ चीजें हैं डेफिनेटली डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो लोग जिस वक्त इन मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं उनमें कितनी फहम फरासत है। वो जाहिर है फिर अगर वो बहुत ही गए गुजरे होंगे या बहुत ही मातड़ होंगे, बहुत ही कमजोर होंगे, तो वो कदम कदम पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, नहीं का ऑप्शन वो उनको जाहिर ज्यादा ताकत देते हैं जो उनको बेहतर हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, फवाद चौधरी साहब, सर नहीं का ऑप्शन लिख दिया मैंने आपका,
मजहर अब्बास साहब, फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट की और ये जो हालात चल रहे थे इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब सियासी धारे में शामिल किया जाता है ऐसी जमातों को तो उनका जोर कम हो जाता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हमने अपने मुल्क और रियासत को मजाक बना दिया है। इंतहा पसंदी की डायनेमिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, दहशतगर्दी बड़ी मुख्तलिफ चीज होती है। इंतहा पसंदी जो है वो एक आइडियोलॉजी होती है, दहशतगर्दी जो है वो वक्ती चीजें होती हैं। आप इंतहा पसंदी को पाबंदी से ना खत्म कर सकते हैं, और जब पाबंदी लगा के आप हटाते हैं तो आप दरअसल उस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में पहली पाबंदी किस पे लगी थी? पाकिस्तान में पहली पाबंदी लगी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और वो कई सालों बरकरार रही किसी न किसी शक्ल में। उसके बाद आपने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई, बाकायदा एक पूरा रेफरेंस फाइल करके। लेकिन दोनों के पीछे अवामिल क्या थे कि आप इस मुल्क से लेफ्ट की और लिबरल पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते थे। लेकिन वो तो नहीं खत्म हुई उस तरह, वो चीजें, पार्टियां खत्म आपने कर ली, वो दूसरे शक्ल में सामने आ गई। फिर हमने देखा कि ये जो एक नई लहर आई जिसमें नए ग्रुप्स बने, नई जमातें बनी। जो पाबंदी 9/11 से एक माह पहले लगी थी वो पाकिस्तान में तमाम तर जो फिरका वाराना तंजीमें थी उन पे पाबंदी लगी थी गालिबन 14 अगस्त 2001 को, 9/11 से एक माह पहले। फिर जनवरी 2002 में जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को कलअदम करार दिया गया। लेकिन अगर आप उसकी पूरी डायनेमिक्स देखें कि जिन जमातों पर पाबंदी लगी वो किसी ना किसी शक्ल में ऑपरेट करती रही, और वो ऑपरेट मुख्तलिफ नामों से करती रही, मुख्तलिफ तरीकों से करती रही। और हम देखें अगर पिछले 40-50 साल में तो इंतहा पसंदी खत्म नहीं हुई, बढ़ी, और इतनी इस हद तक बढ़ी कि अब वो गैर रियासती अनासिर पाकिस्तान की रियासत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब आप देखें कि ऐसा भी जिस तरह कौमी सलामती का ये देखें, इससे ज्यादा बड़ा फोरम कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी मुआहदे की तफसीलात नहीं बताई गई। यानी आप जिसमें आर्म फोर्सेस सारे चीफ सर्विसेज चीफ मौजूद थे, जिसमें पूरी क़यादत मौजूद थी, जिसमें अपोजिशन मौजूद थी, उसके सामने भी मुआहदे की तफसीलात नहीं बताई गई। ना कि आप तहरीक तालिबान से क्या चीज चल रही है, टीटीपी से क्या, उनको बता दें आप कि किसी के पास किसी को डॉक्यूमेंट दिखाई गई क्या? वो जो मुआहदा हुआ नहीं दिखाई गई। पाबंदियां कभी जो जराए से खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके, ठीक है, देखिए पाबंदियां कभी मसले का हल सर, मुझे एक चीज क्विकली बता दीजिएगा। हाँ सर, मुझे एक चीज बता दीजिएगा, जब आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के ऊपर भी चले सवालिया निशान, फिर पाबंदी भी नहीं है मसले का हल, तो फिर क्या हल हुआ एहसन इसका? देखिए अलीना, टेररिज्म को टेररिज्म की तरफ डील करना चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सियासी हकीकत भी तो है, एक सियासी हकीकत एमक्यूएम भी है। ठीक है, एमक्यूएम लंदन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो कलअदम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकती। और एमक्यूएम पाकिस्तान जिसने वो सारे फैसलों के नतीजे में, जिसने नहीं, एक मिनट अलीना, जिसने वो सारे ताल्लुक छोड़ लिए उन तक को, और जो हुकूमत की इत्तेहादी है उन तक को आपने वो मराद नहीं दी जो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए। तो फिर सिपाही साहबा भी राइटफुली डिमांड करेगी कि हम पर पाबंदी हटाई जाए। फिर जमातुद दावा आप देखें, जमातुद दावा की पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती आपको इस तरह की कि आप उसे कलअदम करार दें, लेकिन आपने एक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आपने उसे कलअदम करार दे दिया। तो हमने कलअदम जो चीज है उसको भी एक मजाक बना के रख दिया है। किसी एक जमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल नहीं हुआ टू बैन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव बैंड डजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, हाँ, इस तरीके से हमने इस रियासत को एक मजाक बना दिया है।